Assalamu alaikum. A very warm welcome to Arzish Azam, Country Manager Startup Grind, who has also launched Ijad Labs, an amazing startup that's transforming lives throughout Pakistan. Today's session faced a few technical issues in the beginning, because of which we are a few minutes late. This is the first session of a new series, Mentors Mantra, that we are bringing you from the platform of startup.pk. Uh, the objective behind this program is to share the adventures and pitfalls and all the excitement and failures that launching a startup entails. Right. So before we dive into the subject today, a little bit more about Arzish Azam, because Arzish is no ordinary entrepreneur. I met him when he was 19 or 20 years old on the platform of the Founders Institute. He was the youngest grad of the Founder Institute program throughout the world, a distinction that he still holds. Launched with an idea, pivoted, came to another idea, and in the meanwhile, he has become one of the pillars of the Pakistani startup ecosystem. So I think if you want to know about any organization that's working in the startup ecosystem, or what works or what does not work in community development, Arzish Azam is probably the right man to go to. So Arzish, Assalamu alaikum and a very warm welcome. Walaikum Salam, sir. Thank you so much. I feel honored to be here, and thank you for the kind introduction. And I think one thing that we should add in the introduction is that you've been a mentor since you first met me when I was rightfully 19, and I still am honored to receive your support in all these things that we're doing, and whatever impact we have, I have or my organization has been able to create. I think some of it was inspired by the way you and Yusuf mentored us during Founders Shoot, right? Uh, Because there was a lot of like very selfless work, though, and Chalo, just I also want to clarify: can we do this in Urdu or do we have to do it in uh, English? we can do it in both languages, basically because we started in English because we will be having foreign guests as well, but आज का प्रोग्राम हम उर्दू में कर लेते हैं, इसमें हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, सो आप जो ये तारीफें कर रहे हैं, एक वो लफ्ज़ मेरे ज़हन में आता है, इसको हम कहते हैं अंजुमन सताइश बाहमी, एक दूसरे की तारीफ करना, राइट? सो Mutual हाँ, आई थिंक मेरा ख्याल है कि देखिए मेंटर करने का या स्टार्टअप्स के साथ काम करने का मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मौका मिला, जैसे अब आपको भी मिल रहा है, और लाज़मन ये तादाद अब सैकड़ों में होगी, लेकिन उन सैकड़ों में से चंद लोग हैं, वो जिसको कहते हैं ना, जो कि हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट, यू आर वन ऑफ देम। क्योंकि मेरा ये ख्याल है और मेरा हमेशा से ये यकीन रहा है कि अगर हम कोई भी चीज़ प्लान करें, किसी भी चीज़ पे पूरा जिसे कहते हैं ना पैशन और कमिटमेंट के साथ काम करें तो कामयाबी मिल जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोग ना इस सफ़र में ज़रा हौसला जल्दी हार जाते हैं। सो यू डिड नॉट, एंड उसके बाद आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, ये जो आपने उसके बाद जो कम्युनिटी बिल्डिंग का काम शुरू किया। सो मेंटर्स मंत्रा में आप जो लोग सुन रहे हैं, एक तो ये कि आप सवाल वगैरह पूछ सकते हैं, हम फेसबुक वगैरह में ट्रैक करने की कोशिश करेंगे ताकि हम आपके सवालों के जवाब दे सकें। लेकिन इसके अलावा भी मेंटर्स मंत्रा का मकसद ये है कि ऐसे मेंटर्स को लाया जाए जो आपको जो कहते हैं ना सीक्रेट सॉस बता सकें, वो खुफिया बातें बता सकें जो कामयाबी के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। और अर्ज़िश के पास तो वो कहते हैं पूरी केचप की मिल है। सो वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। तो अर्ज़िश शुरू यहाँ से करते हैं कि थोड़ा-सा ये बताइए, 19 साल बड़ी कम उम्री का दौर होता है, ज़्यादातर लोग तो उस वक़्त वो अभी बैचलर्स और मास्टर्स वग़ैरह के बारे में सोच रहे होते हैं, जॉब्स का सोच रहे होते हैं। आपने इतनी जल्दी क्यों सोचा कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है? आई थिंक गलती गलती से सोच लिया था, मुझे अब लग रहा है नहीं, सो आई थिंक ऑनेस्टली मुझे कोई एंटरप्रेन्योर टर्म भी शायद एक टाइम पे नहीं पता थी, कोई इतना पता भी नहीं था कि स्टार्टअप में होता क्या। बहुत कुछ मैंने फाउंडर शूट में एक्चुअली ज्यादातर चीजें वहां पर सीखी। एक्सीडेंटली मैंने एक ऑनलाइन सेलिंग का वेंचर शुरू कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं, जब मैं एफएससी में था सेकेंड ईयर में, तो चाइना से कुछ चीजें खरीदी अली एक्सप्रेस पे, वो पाकिस्तान में केमो पे ओएलएक्स पे बेची, तो पता लगा अच्छा बिजनेस मॉडल होता है। वो थोड़ा सा ग्रो कर गया और वहां से एक शौक आया कि अच्छा यार स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं। तो मैंने भी स्टार्टअप बनाना है, तो बिजनेस एक चल रहा था मुझे लग रहा है। और फिर मैं घूमता घुमाता जो है फाउंडर इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन कर लिया। और आई थिंक ज़्यादातर जो मेरी लर्निंग है इस सारी इंडस्ट्री के बारे में या इवन प्रोफेशनल जिंदगी के बारे में, क्योंकि मैं एफएससी करके निकला था,
बड़ा एक रॉ सा रिश्ता उस टाइम आप तो मिले हैं तब भी। और आई थिंक बड़ी लर्निंग मुझे हुई कि अच्छा यार स्टार्टअप क्या होता है, फाउंडर क्या होते हैं, और मे बी इट वाज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू ज्वाइन बिकॉज फाउंडर शुड build founders, right, not startups and companies, फोकस ही इंडिविजुअल पे। और शायद मुझे उस टाइम ज़रूरत भी वही थी। और आई थिंक ज़्यादा जो जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि आया तो मैं जिस मर्जी रीजन की वजह से, कि शायद कूल था, स्टार्टअप बनाना था, शौक था कि $1 बिलियन कंपनी बनानी। आई थिंक लेकिन जिन रीजंस की वजह से बंदा स्टिक अराउंड करता है, जिन रीजन की वजह से आप गिव अप नहीं करते, आप परसिस्टेंट रहते हो, वो शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें कुछ तो ये थी कि एक तो फ्रीडम बहुत है, कि शुरू से कभी जॉब नहीं की तो लगा कि यार अच्छा इस काम में बड़ी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, कि कभी भी आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, 9 to 5 की बाउंड नहीं है आप। फिर ये कि टू सम एक्सटेंट आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मतलब जो भी एंटरप्राइज हो, आई थिंक जॉब्स तो वो लोगों को देते ही हैं, तो वो भी एक इम्पैक्ट है। आप सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आईटी इंडस्ट्री को, तो हमें लगता है कि यार ठीक है, मतलब हम पैसे कमा रहे हैं, सही है, लेकिन ये कि हम कहीं ना कहीं मदद भी तो कर रहे हैं लोगों की, एक सर्विस दे रहे हैं जिनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो शायद वो एक इम्पैक्ट का भी एलिमेंट था। और फिर ये कि पर्सनल लर्निंग का, और कुछ ये कि कम्युनिटी बिल्डिंग वाले काम में जो ज़्यादा मेरा दिल लगा, वो ये कि प्रॉब्ली मज़ा इसमें आता है कि यार इवेंट्स करा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं। तो नए नए काम करने का बड़ा शौक है। वो एक चीज़ मैं ज़्यादा देर करूँ तो मैं बड़ा बोर हो जाता हूँ। मुझे होता है कि यार कोई नया सा प्रोजेक्ट हो। तो इसीलिए हर 3-6 महीने बाद कोई नया ट्रिप, कोई नई कॉन्फ्रेंस, कोई नया इनिशिएटिव बड़ा ज़रूरी होता है। कोरोना में भी डिस्पाइट कोविड कुछ नई चीज़ें शुरू की हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो भी ग्रो कर गई। तो मुझे लगे कि वो एक एक नेचर मेरा था जो मैंने एक्सप्लोर किया इन सारे एक्सपीरियंसेस से, और फिर उसी में सक्सेस मिली। तो शुरू में तो पता भी नहीं था कि यार ये सब कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है आज भी बड़े लोगों के लिए एक एक ऑड बात होगी कि यार अच्छा कम्युनिटी बिल्डिंग से भी लोग एक सस्टेनेबल बिजनेस बना सकते हैं। बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ा सवाल है और ये मैं भी पूछूँगा। लेकिन इससे पहले आपने अभी जो बात की उसमें कुछ सवाल और उठे मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग इनपुट आपने दिया। आपने कहा कि आप ये समझते हो कि आप जब स्टार्टअप लॉन्च करते हैं तो टाइम आपका अपना हो जाता है 9 टू 5 वगैरह की बंधन से आज़ाद हो जाते हैं। मेरा तो ख़्याल है वो 9 टू 9 के बंधन में बंध जाते हैं, फिर 9 टू 5 तो एक छोटी चीज़ रह जाती है। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही मुझे मेरा इसमें सवाल ये है कि जो लोग 9 to 5 काम करते हैं, क्या आप 5 बजे के बाद वो सोचना छोड़ देते हैं काम के बारे में? तो मुझे लगता है कि मतलब इंसानों की इन्वॉल्वमेंट रहती है। लेकिन ये कि यहाँ पर क्या है कि अगर आप 9 to 9 भी कर रहे हैं, आपको पता है कि यार अपना काम, राइट? तो आपको ये नहीं कि मैंने घंटे पूरे करने हैं, कि मैं 9 बजे दफ्तर गया हूँ, 5 बजे वापस। आप दिन मतलब देर आर मेनी डेज जहाँ शायद मैं अभी भी 2 या 3 घंटे काम करता हूँ, लेकिन कई दिन होते हैं पूरा पूरा दिन लग जाता है। तो आई थिंक उस लेवल में फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन डेफिनेटली आई थिंक दिस इज हार्डर देन डूइंग अ जॉब, लाइक नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मोस्टली जो ये आपकी मोटिवेशंस हैं डिफरेंट सी, जो हमने एफआई के दौरान भी ढूंढी थी, ये आपको बस लगाई रखती हैं इस पे कि यार अच्छा अगर आज नहीं भी काम हुआ तो चलिए कल दोबारा ट्राई करें। और फिर ये जो मुझे लगता है कि जो एक नसीब की बात है ना, कि सो जॉब में आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, आपको पता है कि यार महीने के एंड पे पे चेक आना है, पे चेक डिफाइंड है, 1.5-2 लाख जो भी अमाउंट है उसने आना है, मैं जो मर्जी कर लूँ, राइट? जॉब में क्या, बिजनेस में क्या है कि हर दिन एक नया चांस है, हर एक दिन एक नया मौका है कि आज कुछ नया कर सकते हैं। और शायद रिस्क भी उसी तरह मल्टीप्लाई हो जाता है क्योंकि चांसेस ज्यादा हो जाते बिल्कुल सही है। रिस्क तो ख़ैर अल्लाह ताला ने हर एक का उसके हिस्से का लिखा हुआ है और ये मेरा भी यकीन भी है और अकीदा भी है। अच्छा मुझे अभी मैं चूँकि इसी पे हूँ कि आपने सफ़र शुरू कैसे किया तो उसमें एक और सवाल क्योंकि बहुत सारे यंग लोग भी इस प्रोग्राम को हमारे देखेंगे। तो सवाल ये हैं। होता है कि आपके वालिदैन ने कुछ नहीं कहा कि आप ये स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हो, नौकरी क्यों नहीं कर रहे, आगे पढ़ क्यों नहीं रहे? कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया आपकी ज़िंदगी में? जी जी बिल्कुल। और बस एक सेकंड दीजिए। सॉरी। तो कोई नहीं, बात बिल्कुल बिल्कुल आया। तो जब मैंने एफएससी कंप्लीट की तो मैंने सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया। शौक बहुत था, मैंने कहा यार जीकी भी बड़ी कूल है, उसमें भी अप्लाई कर दिया। और एडमिशन कहीं भी नहीं हुआ, मतलब कॉमसेट्स के अलावा। और उसमें मैंने कभी एडमिशन टेस्ट की तैयारी भी नहीं की, हालांकि आई वाज एन अबव एवरेज स्टूडेंट, तो शायद मैं तैयारी करता तो ज़्यादातर जगहों पे एडमिशन मिल ही जाता, मेरे दोस्तों को मिल गया। लेटर इन लाइफ आई रियलाइज्ड कि शायद मैं एडमिशन लेना ही नहीं चाह रहा था। अगर लेना चाहता तो मैं टेस्ट की तैयारी भी करके जाता। तो अंदर आपके कुछ ना कुछ चल रहा होता है जो आपके एक्शंस को उस तरफ ले जाता है।
तो जब वो मिस हो गया तो मैंने फिर पेरेंट्स से कहा जी कि ये हो गया है, थोड़ा बहुत मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं 6 महीने की ब्रेक लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं थोड़ा ट्राई करके देखूँ कोई और चीज़ें। वो 6 महीने की ब्रेक से 1 साल हो गई, तो साल पे जाके ज़रा पेरेंट्स को थोड़ा बहुत होता है। उस टाइम काम भी इतना नहीं चल रहा था, अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी चलता है। और पेरेंट्स को थोड़ा-सा था, वालिद साहब की तरफ से आई थिंक थोड़ा ज़्यादा कंसर्न था कि यार को इंजीनियरिंग इसने करनी थी, वो कर ले, इसने करनी है। फिर ये कि थोड़ी-सी उनको भी अंडरस्टैंडिंग हुई, शायद एफआई में ग्रेजुएशन से बड़ा वो इम्प्रेस हुए कि यार नहीं कोई रियल रियल चीज़ है। और क्योंकि उनके लिए भी शायद सब कुछ ना बड़ा न्यू था कि यार ये क्या स्टार्टअप क्या होता है, क्या इंडस्ट्री आईटी है। इसकी जगह शायद मेरा गाड़ियों का शोरूम होता ना, तो फिर वो शायद कुछ ना करते शुरू में। लेकिन स्टार्टअप शायद उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम। लेकिन साल इसमें 1 अर्जिश, इसमें ये भी होगा, आपके फैमिली में पहले कोई बिजनेस में है? हमारी एक्चुअली सारी फैमिली बिज़नेस में। तो अच्छा। अभी अगर मैं सोचूँ तो मुझे नहीं लगता इस टाइम कोई भी मेरे ददहाल से कुछ जॉब करता है, सारों के बिज़नेसेस हैं। इवन माय फादर हिमसेल्फ ही रन्स पब्लिशिंग हाउस नाउ, बट बैक देन ही यूज्ड टू बी फ्रीलांस डेवलपमेंट सेक्टर पर्सन, राइट? तो उन्होंने हमेशा वो फ्रीलांस काम किया है कि जिसमें 9 टू 5 रिस्ट्रिक्शंस ना हो। तो मैं अब ये कहता हूँ कि उन्होंने ही हमारी आदतें कुछ ये खराब की हुई हैं। और शायद उस वजह से थोड़ी-सी एक्सेप्टेबिलिटी थी कि यार ठीक है, सारे एक बिजनेस माइंडेड से बैकग्राउंड से सारे आए हैं और हमें सारों को ही होता है कि यार कोई ना कोई कारोबार करना चाहिए। तो आप एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम में आए, जैसे आपने कहा फाउंडर इंस्टीट्यूट में, आपको सीखने का मौका मिला, आप बड़े सीनियर सीरियस लोगों से मिले, बीच में आपने भी अपना स्टार्टअप लॉन्च किया और शायद थोड़ा बहुत उसको आपने ग्रो भी कर लिया, उस वक़्त उसकी ग्रोथ तो ठीक ही जा रही थी। पिवट क्यों किया? आपने बिज़नेस मॉडल क्यों बदला? क्या वो प्रॉफ़िटेबल नहीं था, या आप सस्टेन नहीं कर पाए, या आप जैसे कहा बोर हो गए, क्या हुआ? आई थिंक मैं बड़ा फाउंडर इन मैच्योरिटी थी, तो अपने बारे में कहता अच्छा तो नहीं लगता बंदा। लेकिन मैं शायद ज़िंदगी में जिस स्टेज पे था, उस टाइम पे मैं वो स्टार्टअप नहीं बिल्ड कर सकता था। अब मुझे ये रियलाइज़ेशन है। शायद उस टाइम भी हो गई थी जब 1.5 साल पहले मैंने फैसला किया कि यार ये अब इससे ज़्यादा नहीं करना। तो शुरू में ग्रोथ थी, मेरे लिए नई चीज़ें थी, कुछ कंपनीज़ भी ऑन बोर्ड आ गईं, जो प्राइस कंपैरिज़न इंजन था। एक पॉइंट पे आके बड़ी स्टैग्नेंट हो गई चीज़ें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सीखी, अच्छा वेबसाइट कैसे बनाते हैं, बाकी टेक्निकलिटीज़ कैसे करते हैं। तो 1.5 साल बाद रियलाइज़ हुआ कि यार ये अब मुझे लग रहा है अगले 2 साल भी मैं इसको ही ना पुश करता रहूँ, इतने स्किल सीख ली हैं पिछले 1.5 साल में। और मेरा हमेशा से गोल ये था कि मतलब एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ इज़ अ प्रोडक्ट, राइट? तो मैं खुद प्रोडक्ट हूँ। आज मेरी कंपनी जाद लैब्स है, पता नहीं 4 साल बाद कोई और कंपनी होगी, क्या होगा? तो पर्सनल ग्रोथ बड़ी ज़रूरी है। तो मुझे लगता है उस 1.5 साल में स्पेशली एफआई में, बाकी सारे एक्सपीरियंसेस में, स्टार्टअप में तो शायद ग्रोथ इतनी नहीं, पर्सनल ग्रोथ काफ़ी हो गई। तो मैंने कहा यार अच्छा इसे रोकते हैं, कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं सॉफ्टवेयर सर्विसेज की साइड पे। कम्युनिटी बिल्डिंग उस टाइम को सस्टेनेबल चीज़ नहीं थी, बस एक शौक था कि यार इवेंट कराते हैं। और सॉफ्टवेयर ने थोड़ा सा सस्टेन किया 1 डेढ़ 2 साल। अब हम सर्विसेज एज सच नहीं करते, कोई दोस्त हो तो उसके लिए मदद कर देते हैं। अब तो ये कि फुल टाइम कम्युनिटी बिल्डिंग पिछले एटलीस्ट डेढ़ 2 साल से। और उसमें आया कि यार अच्छा इससे मूव ऑन करना चाहिए कि अब मैं जो है ना ये मतलब ये मुझे ड्रैग कर रहा है, राइट? तो ये खत्म करता हूँ, कोई फ्रेश स्टार्ट लेता हूँ। और आई एम लकी कि वो मैंने डिसीजन लिया और नई चीज़ शुरू की, वो चल गई। इजाद लैब्स ने थोड़ा सा शेप लेना शुरू कर दिया, कम्युनिटी बिल्डिंग के हम पंगे लेते रहे छोटे छोटे। फिर वो एक्सचेंज प्रोग्राम हमने पहला किया, जहाँ से हमारी जो कम्युनिटी बिल्डिंग वाली चीज़ है उसने एक ज़्यादा बड़ी इम्पैक्टफुल शेप ली कि अच्छा यार लोग अमेरिका जा रहे हैं 2018 फरवरी में, राइट? और उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री, राइट? सो उसके बाद इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज इनसाइड पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, वो सारा कुछ बहुत ग्रो किया। और जिस तरह के मुझे लगता था कि जिस तरह योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, आप हमेशा सुनते हैं कि जो जो कम्युनिटी वाला काम है वो भी बड़ा इस तरह का है कि आपको क्लियरली नहीं पता कि यार अच्छा मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ, इससे डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है। लेकिन ये ज़रूर है कि यार कहीं ना कहीं से आपको कुछ मिल ज़रूर जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप लोगों के साथ मिलते हैं, ट्रैवल करते हैं, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं। और अब हमें मतलब अब हमारे पास इतना ज़्यादा काम है कि हम कुछ चीज़ें नहीं करते कि यार बैंडविड्थ नहीं है। तो आई थिंक वो मतलब ज़रूरी था कि जब आप कॉलेज से निकलते हो, मुझे लगता है लोगों को पता नहीं होता करना क्या है, तो जाते हैं इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा उस टाइम ज़रूरी भी नहीं कि आपको पता हो, आपका एक्सपोजर ही कोई नहीं है ज़िंदगी में, तो 1-2 साल देख लें, घूमें फिरें, डिफरेंट डिसिप्लिन में पढ़ के ट्राई कर लें। तो मुझे लगता है वो जो सारे मैं एक्सपीरियंस से गुजरा, एट द एंड सेटलमेंट ये हुई कि अच्छा यार कम्युनिटी बिल्डिंग वाला जो काम है ना, ये मेरा फिट है इसके साथ, मेरी पर्सनैलिटी का, मेरे जो स्किल्स हैं उनका। और फिर उसमें ग्रोथ आई, जो रियल ग्रोथ है।
स्टैनफोर्ड का जो कमेंसमेंट एड्रेस बड़ा मशहूर हुआ स्टीव जॉब्स का, उसमें उसने बात की थी कनेक्टिंग द डॉट्स का। तो उसने कहा मैं नहीं सोच सकता था कि मेरी ज़िंदगी में जो तजर्बे हैं ये क्या हैं, लेकिन अब जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि आई हैव बीन कनेक्टिंग द डॉट्स। तो आप भी यस। यही बात कर रहे हो। अब इसमें एक सवाल मेरा ये बनता है कि आपने वो अपना जस्ट प्राइस लॉन्च किया, जो प्राइस कंपैरिज़न था उसमें आपने साल डेढ़ लगाया। आपको लगा कि ये इस वक़्त उस तरह नहीं चल रहा है जिस तरह आप चलाना चाह रहे हैं, या आप बोर होना शुरू हो गए। अ, आपको कम्युनिटी बिल्डिंग का आइडिया कैसे हुआ, या ये भी एक हादसा था कि आप कम्युनिटी बिल्डिंग में चले गए और बाद में बिज़नेस मॉडल डेवलप हुआ? तो ये भी एक्चुअली एक हादसा था। तो इवन जब मैं जस्ट प्राइस मैंने स्टार्ट किया, एज सच फाइनेंशियल इतने मोटिव नहीं थे। ये था कि यार एक स्टार्टअप बनाना है, कभी ना कभी पैसे आ जाएंगे। पैसे कभी भी नहीं आए उससे, लगा दिए जो कमाए थे वो भी सारे। कम्युनिटी बिल्डिंग तो एक हादसा थी तौर पे मैंने स्टार्टअप ब्रांड डिस्कवर किया, तो इस्लामाबाद चैप्टर डेड था, वो रीएक्टिवेट कर दिया। अब हम 15 शहरों में, मैं कंट्री मैनेजर हूँ स्टार्टअप ब्रांड का। तो उससे आहिस्ता आहिस्ता कोई गोल नहीं था कि यार पैसे बचने, हमेशा लगे ही हैं स्टार्टअप ब्रांड में पैसे। और बस था कि यार मजा आता है कि अच्छा लोग मिलते हैं, इवेंट होता है, अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती हो जाती है जिनको आप होस्ट करते हैं। नॉर्मली शायद इतने सारे लोग दोस्त ना होते। अगर मैंने मतलब 40 लोगों को तो शायद पर्सनली होस्ट किया हुआ है, 50। और मंथली इवेंट्स पर, कॉन्फ्रेंसिस पे तो क्या 300-400 प्लस है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि अगेन वो कनेक्टिंग द डॉट्स वाली बात है कि देखा कि यार जिस चीज को मैं शुगल में कर रहा था या फन के लिए कर रहा था, वो कनेक्ट हो गई बाकी एक्सपीरियंसेस से, और कहीं पर एक बिजनेस मॉडल बन गया। जिस तरह हमारा एक एक्सचेंज वाला बिजनेस मॉडल है, कॉन्फ्रेंसिस में बिजनेस मॉडल है कि अच्छा यार आप स्पॉन्सर्स आ जाते हैं, राइट। तो अगर वो इतनी एफर्ट ना होती पिछले 3-4 साल की, वो रीच ना होती, वो नेटवर्क ना होता, तो हम जो स्टार्टअप ब्रेन कॉन्फ्रेंस हमने लास्ट ईयर की, वो भी इतनी सक्सेसफुल ना होती कि 40 लोग बाहर से आ गए। उससे आरओआई आ गई। फिर अब हम जो इजाद प्लस वाला काम कर रहे हैं, एसेंशली द सेम इंडस्ट्री जिसके साथ हम बाकी चीजें कर रहे थे, आईटी के लोग, फ्रीलांसर्स, सॉफ्टवेयर कंपनी ओनर्स, एसएमईज, ये सारे, उन्हीं को हम इस प्रोडक्ट में भी टारगेट करते हैं और इससे भी रेवेन्यू आता है। तो आई थिंक हमारा जो, जिस तरह मैं देखूं अगर इजाद लैब्स को, जो जो ये कंपनी है मेरी, तो मुझे लगता है कि हम ये नहीं कैलकुलेट करते कि शायद ये एक इवेंट करें, एक एक्टिविटी करें, ये प्रॉफिटेबल होना चाहिए। हम कहते हैं यार एज लॉन्ग एज ये हमारे विजन से लाइन करती है, ईयर एंड प्रॉफिटेबल होना चाहिए। कि यार ये ग्लोबल पाकिस्तान टेक समिट किया है, पूरा महीना लग गया है, बिल्कुल उससे कोई फाइनेंशियल आउटपुट नहीं है, लेकिन आई एम श्योर उसकी वजह से हमें को 10 जगह पे फायदे मिले, 10 जगह पे आउटपुट मिले। और हम वो एक ओवरऑल विजन को फॉलो करते हैं हर एक्टिविटी में, चाहे उससे कोई फाइनेंशियल रिटर्न हो ना हो। क्योंकि मुझे लगता है शुरू में कोई नहीं था और फाइनेंसेस अब आ गए हैं, तो अब हमें ये नहीं करना चाहिए कि यार जिन चीज़ों से पैसे आ रहे हैं सिर्फ हम वही काम करें। तो हमें इदारे का विजन जो है लेके चलना चाहिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है। क्योंकि ये 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं स्टार्टअप की दुनिया में। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि पहले बिज़नेस मॉडल ढूँढें, क्योंकि अगर आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, प्रॉफिटेबल नहीं है, तो फिर बिज़नेस नहीं है। मतलब इस बात से वो मुत्तफ़िक हैं कि थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो ये इम्पैक्ट वाला है कि विज़न के साथ अलाइनमेंट होनी चाहिए, इम्पैक्ट क्रिएट करते रहें जितना आप कर सकते हैं, और बिज़नेस खुद ब खुद फ़ॉलो करना शुरू कर देता है। तो ये इंटरेस्टिंग इनसाइट है कि आपने इसको खुद ही अडॉप्ट कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब आप उसमें कामयाब होना शुरू हो गए। अच्छा, मैं हम्म, साथ-साथ सवाल लेता रहूँगा जो हमसे पूछे जा रहे हैं। हम्म। दानिश ने सवाल पूछा है कि उनकी एक ई-कॉमर्स बिज़नेस है। ई-कॉमर्स बिज़नेस के लिए वेबसाइट पे ट्रैफ़िक कैसे लाई जाए? अच्छा, बिल्कुल ये सही। इंटरेस्टिंग और बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है एक्चुअली, लेकिन बहरहाल। बिल्कुल, शायद मेरी डोमेन तो, मेरी एक तो इसमें डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है। मुझे जनरल अंडरस्टैंडिंग है डिजिटल मार्केटिंग की। लेकिन मैं चाहूंगा मैं को गलत एडवाइस ना दूं उस टॉपिक पे जिसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं रेफर आपको करता हूँ, उस्मान लतीफ़ एक नाम है, इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर भी हैं, मार्केटिंग के इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सी कंपनीज के साथ काम करते हैं। तो एसेंशियली हमारा जो सारा डिजिटल मार्केटिंग देखते हैं, वो उनकी कंपनी देखती है। तो आप जाएं उनके लिंक्डइन पे रीच आउट करें, जो भी सवाल है बच्चे, अगर वो रिप्लाई नहीं करते, नॉर्मली वो कर देते हैं, तो आप फिर मुझे पिंग कर लें, मैं उन्हें कह दूंगा। तो आई थिंक वो इस इन क्वेश्चन से रिलेटेड वो ज्यादा बेहतर गाइड करते हैं। अच्छा दानिश, इसमें 1-2 चीज़ें मैं भी ऐड कर दूँ। एक तो ये वेबसाइट जिससे हम ये प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं startup.pk, इसमें इस किस्म की एडवाइस हम काफ़ी देते हैं, और ई-कॉमर्स स्टार्टअप्स में हमारे 3-4 आर्टिकल्स हैं, वो एक दफ़ा देख लीजिएगा। दूसरी बात, जनरली असल में जो सवाल है इसके 2 हिस्से हैं। एक ये कि आपको अपना प्लेटफ़ॉर्म बनाना चाहिए या सबसे पॉपुलर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अपने आप को प्लेस करना चाहिए। मतलब आजकल लोग अमेज़न के थ्रू ई-कॉमर्स को बिल्ड करने पे ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं बनिस्बत इसके कि अपने छोटे-छोटे वो बनाएँ। ये डिपेंड करेगा आपकी बिज़नेस क्या है, आपका स्टेज क्या है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी मार्केट क्या है।
और फिर इसके अंदर टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजीज़ काफ़ी कुछ आते हैं, जैसे इन्होंने बात की, आपको रेफ़रेंस दी, तो उन हिसाब से ही मिल लीजिएगा। ट्रैफ़िक आती है जब आप सही प्रोडक्ट को सही रेलेवेंट ऑडियंस तक कनेक्ट कर देते हैं। मतलब अभी जैसे हम कम्युनिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, जब दोनों पार्टीज़ को कोई वो उसमें भला नज़र आता है तो वो जुड़ते हैं। मतलब अर्ज़िश के केस में मैं अगर ये कहूँ कि शुरू में इनकी एक अच्छी फीलिंग थी कि अगर लोग मिल बैठ रहे हैं, कोई चीज़ जनरेट हो रही है, इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये उस फीलिंग की वजह से अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे, पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे थे और पैसे फिर कमाना शुरू हो गए। ई-कॉमर्स में इससे ज़्यादा सॉलिड है, ई-कॉमर्स में मैट्रिक्स बहुत क्लियरली डिफाइंड है। सो आप हमारी वेबसाइट को देखिएगा www.startup.pk और बाकी हम ई-कॉमर्स के ऊपर भी एक मेंटर्स मंत्रा करने जा रहे हैं, उसमें हम आपको दोबारा एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अटेंड करेंगे। अर्जिश बैक टू आवर क्वेश्चन जी। कम्युनिटी बिल्डिंग ये आपने शुरू की, नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ हम सुनते आए हैं और बहुत ज़्यादा सुना है। कम्युनिटीज़ जो हैं किसी भी स्टार्टअप के लिए क्यों बहुत ज़रूरी हैं? अच्छा, आई थिंक सो इकोसिस्टम की हमेशा बात होती है। बहुत से लोगों को डेफिनेशन नहीं पता कि इकोसिस्टम क्या है। हम अपने आप को इकोसिस्टम बिल्डर बोलते हैं। तो इसका बड़ा सिंपल जवाब ये है कि इस्टोनिया जैसा एक मुल्क है, छोटा सा मुल्क है अभी भी, वहां से स्काइप एक कंपनी निकली है दुनिया में, हर किसी को स्काइप का पता है। तो वो बड़ी रेयर बात है, ठीक है। ज्यादातर कंपनीज निकली हैं सिलिकॉन वैली से, अमेरिका से। तो कोई तो लॉजिक होगा, और वो लॉजिक ये है कि वहां पर इकोसिस्टम है, वहां पर वो एलिमेंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं ऐसे बिजनेसेस की ग्रोथ, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ियों की आपने सामान लेना हो तो लाहौर में एक वो है, नाम मैं भूल शालमी गया। शालमी बिल्कुल, गवाल मंडी है। हाँ, वहां पर सारी गाड़ियों का एक इकोसिस्टम है ना। आपने कोई भी गाड़ी रिलेटेड काम करना है, आप वहां बैठ के करेंगे, बड़ा आसान है। आप डीएचए बैठ जाएंगे तो शायद पूरा दिन आपका आना जाना ही लगा रहे। तो यही एग्जांपल स्टार्टअप्स में है कि एक इकोसिस्टम चाहिए होता है। आई थिंक ग्रोथ इनेबल करने के लिए, हो तो वैसे भी जाती है, जो करने वाले हैं वो सब कुछ के बगैर भी कर लेंगे, स्काइप ने एस्टोनिया से कर लिया। लेकिन हमारा रोल क्या है कि हम ज्यादा लोगों के लिए इन्वायरमेंट इनेबलिंग क्रिएट करें, राइट, कि वो काम कर सकें, वो स्टार्टअप बना सकें, स्केल कर सकें। अब जो इजाद लैब्स का ज्यादा काम है वो सिर्फ स्टार्टअप्स तक भी नहीं है। हम ओवरऑल इनोवेशन इकोनॉमी को टारगेट करते हैं कि आप फ्रीलांसर हैं, आप रिमोट इंजीनियर हैं, आप फाइवर पे काम करते हैं, तो एज लॉन्ग एज आपकी इनकम जो है डिजिटल मीन से आती है, आप इनोवेशन इकोनॉमी का पार्ट है। हमारे सारे प्रोग्राम्स उनको केटर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है एट द एंड पाकिस्तान के पास ह्यूमन कैपिटल है। चाहे वो एयरलिफ्ट जैसा स्टार्टअप बना ले, बाइकिया बना ले, चाहे उसने कोई सॉफ्टवेयर कंपनी बना ली, आरपी सॉफ्ट, टीआरजी, वट, चाहे वो रिमोट वर्कर है, जो कि मैं जानता हूँ बहुत अच्छे काम, एट द एंड टैलेंट है। हम इन लोगों को इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, लोकली, इंटरनेशनली, ग्लोबली जो सारा है, और जो पाकिस्तानी बाहर गए हैं उनको भी। और इसमें यही है कि आई थिंक ज़रूरी शायद इसलिए कि अगर हम देखें आज से 10 साल पहले और उस टाइम कितने स्टार्टअप शुरू हुए थे वर्सेस इस साल कितने हुए हैं, पिछले 3 साल में कितने हुए, कंसिडरेबल डिफरेंस है एक नंबर का। अमेरिका में आप देखें कितने यूनिकॉर्न्स बनते हैं, आप देख लें पाकिस्तान से एक बना है आज तक, इंडिया से आई थिंक ज़्यादा है, कुछ 10-12 होंगे। तो वो रोल इकोसिस्टम का बड़ा स्ट्रांग है, और उसका मकसद यही है कि आप जो कर रहे हैं आपको सपोर्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स अवेलेबल हो। कि आप स्टार्टअप बना के निकलें, आप फाउंडर शूट में आए तो वहाँ पर 12-18 और लोग हैं जो सेम जर्नी से गुजर रहे हैं, आपके चैलेंजेस उनके चैलेंजेस काफ़ी सिमिलर हैं। तो वो आपकी मदद करें, आप उनसे सीखें, आप मेंटोर से मिलें जिस तरह आप लोगों ने मिलाया। फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, इस तरह हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनआईसी है, startup.pk है, बाकी सारे जो डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं। और इन सारी चीज़ों में आई थिंक बड़ा बड़ा इनेबलिंग रोल प्ले होता है एनी इंडिविजुअल, आई थिंक, जो डिजिटल इकोनॉमी में इन्वॉल्व है, राइट। और जो स्टार्ट करे, जैसे ई रोजगार एक प्रोग्राम है, ये सारे डिफरेंट प्रोग्राम है जो स्किल ट्रेनिंग करते हैं। तो ये सारे मिलके मुझे लग रहा है एक इनोवेशन इकोसिस्टम बना रहे हैं, इवन बिगर देन द स्टार्टअप इकोसिस्टम, क्योंकि टैलेंट अच्छा होगा तो वो स्टार्टअप बनाएगा। कि अगर उस्मान गुल अमेरिका गया, पाकिस्तान में पैदा हुआ, जो भी अमेरिका गया, 10 साल उसने काम किया, फिर वापस आया तो उसने स्टार्टअप बनाया। बहुत से लोग हैं, फैजान असलम, बुकमी.pk इनिशियली सॉफ्टवेयर हाउस था उनका, बाहर से क्लाइंट्स थे, पैसे आते थे, फिर बुकमी का आइडिया वो बनाई। तो ये टैलेंट को ट्रेन करना जरूरी है, उसके बाद स्टार्टअप भी बन जाएंगे, लोग सॉफ्टवेयर हाउसेस भी बना लेंगे, लोग बाहर जाके गूगल फेसबुक में जॉब भी कर लेंगे।
तो आई थिंक दैट इज व्हाई इकोसिस्टम इज वेरी वेरी क्रूशियल स्पेशली फॉर पाकिस्तान। आई थिंक ये जो पॉइंट आपने रेज किया, मतलब पाकिस्तान में दो किस्म की रिसोर्सेज हैं। एक हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें मुझे बड़ा हमेशा अफसोस होता है कि हम वैल्यू एडिशन के बगैर ही ज़्यादातर बाहर बेच देते हैं। और दूसरी जो है हमारी, वो ह्यूमन रिसोर्स है। एंड आई थिंक ये जो इनोवेशन इकोनॉमी है, प्रॉब्ली दिस इज़ द वे आउट फॉर पाकिस्तान, कि अगर हम लोगों को सही मायने में एंगेज करके उन्हें ये इन अपॉर्चुनिटीज़ से कनेक्ट करें, तो पाकिस्तान में गुर्बत और ये जो अनस्किल्ड लेबर और ये वाले मसाइल हैं, काफ़ी हद तक कवर हो सकेंगे। अच्छा, आपने एग्जांपल दी एस्टोनिया और स्काइप की, तो इसकी बैक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और वो ये कि स्काइप जो है वो एक लड़के और लड़की ने एक इंक्यूबेशन लैब में बनाया था, और उनसे एक इन्वेस्टर ने ये खरीदा, शायद गालिबन $1 मिलियन का उस वक्त खरीदा। इन्वेस्टर पाकिस्तानी था, असद जमाल साहब। सो असद जमाल टुक स्काइप टू सिलिकॉन वैली, एंड एज दे से द रेस्ट इज हिस्ट्री। उन्होंने बाद में इसको एक बहुत हैंडसम अमाउंट पे बेचा। वो हैंडसम अमाउंट पे दो तीन अलग अलग फिगर्स होती हैं, इसलिए मैं कोट नहीं करूंगा, बट इट वाज अ ह्यूमंगस अमाउंट, राइट? सो इनोवेशन इकोनॉमी में अब हमें असल वैल्यू क्रिएशन नज़र आनी शुरू हो गई है। कि अब जो है हमें ये मालूम हो रहा है कि शायद लुकिंग एट द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, अब इस साल हमें मुख्तलिफ फिगर्स मिली हैं कि पिछले साल 2020 में डिस्पाइट कोविड, आई थिंक $43 मिलियन से लेके $55 मिलियन तक लोग कोट कर रहे हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वेस्ट हुआ। मेरे लिए जो सबसे हौसला अफजा बात है वो ये कि प्री सीड प्री सीड में जैसे रूमी के ऊपर $900,000 इन्वेस्ट हुआ। तो एक स्टार्टअप के आइडिया स्टेज पे इतनी अमाउंट एड्रेस होना, या एयरलिफ्ट ने 8 महीने के अंदर अंदर सीरीज अपनी एज और रेज की, दैट वाज अ सब्सटैंशियल सीरीज है। तो हमें अब नजर आ रहा है कि करंट दौड़ना शुरू हो गया, और आप जैसे जो लोग हैं वो कहते हैं वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। आप वो जो डाइवर्स नेटवर्क्स हैं उनको कनेक्ट कर रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ मैजिक इज हैपनिंग बिकॉज इस किस्म की चीजें हो रही हैं। अच्छा, आयशा खालिद का सवाल है, और ये अच्छा सवाल है। पूछती हैं, व्हाट रिस्क्स एंड सैक्रिफाइसेस डज सच एन एंटरप्राइज डिमांड? अब ये सच एन एंटरप्राइज से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अर्जिश की जो कम्युनिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है उसकी बात हो रही है। जी जी। तो अब एक तो ये कि जो प्राइमरी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है एक ही है, इजाद लैब्स उसका नाम है। स्टार्टअप ग्राइंड का मैं कंट्री मैनेजर हूँ, और इवन जो स्टार्टअप ग्राइंड का भी सारा काम है हम उसे टू सम एक्सटेंट इजाद लैब्स के साथ साथ लेके चलते हैं, क्योंकि सेम ही मतलब मोटिव्स है। स्टार्टअप ग्राइंड सिर्फ इवेंट्स होस्ट करता है, हम बाकी सारी चीजें भी करते हैं। तो इसमें ये कि रिस्क एंड सेक्रीफाइस बड़ा इन्होंने इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछ लिया है। तो लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब कि किस तरह बंदा एक्सप्लेन करे। देखिए जॉब जो है ना बड़ी, मुझे लगता है कि वो रिस्क टेकिंग वाला इतना काम नहीं है। आप जाते हैं, आपको पता है महीने के एंड पे, मतलब आज भी मुझे लगता है कि मेरे जो दोस्त जॉब करते हैं वो उनकी जिंदगी बड़ी ज्यादा आसान है। उन्हें पता है महीने के एंड पे जो है ना ये पेचेक आ जाना है, चाहे वो पेचेक 50,000 का ही, उन्हें पता है आ जाना है। बिजनेस में हमें जितना मर्जी आ रहा हो, हमें नहीं पता कि कल है ये नहीं है। तो देर इज ऑलवेज दिस रिस्क कि यार अगर आप नहीं कोशिश करते रहेंगे, इनोवेट नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, तो क्या कल को ये रहेगा या नहीं रहेगा, राइट? तो एक वो ग्रोथ की शायद भूख भी रहती है इस वजह से। फिर टू सम एक्सटेंट सेक्रीफाइसेस की अगर बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स की बड़ा बड़ा फेमस है कि वो कोई बैलेंस लाइफ नहीं इतनी होती, कोई इतनी पर्सनल लाइफ फैमिली फैमिली का सारा जो इशू है। तो अब मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं 9 to 6 काम करूँ, 6 के बाद अपनी चीज़ों पे करूँ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूँ और वो सारा कुछ। लेकिन ये कि इवन अभी भी जब हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब काम होते हैं, तो 24/7 ही काम होता है, तो वो एक पर्सनल लाइफ को आप समझें कि सेक्रीफाइस कर लेते हैं। और बड़े बड़े आई थिंक रिलेशनशिप्स को भी शायद सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मुझे नहीं पता मैं कितने को अपने कजन्स की शादियों में गया हूँ आज तक, या कितने इवन दोस्तों की शादियों में गया हूँ। अभी एक दोस्त की शादी में मैं 3 दिन गया था, और वो बड़ा जरा घर के बड़ी करीब थी शादी। और लेकिन ये कि मुझे लगता है ये सारे बड़े ज़रूरी होते हैं उस ग्रोथ के लिए, राइट? क्योंकि आप नहीं चाहते कि यार आप हर रिश्तेदार की हर शादी में पहुंच जाएं, एंड पे आपका कारोबार ग्रो ना करे। तो आपने डिफाइन करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर तो ये है कि ठीक है यार मैंने रिलेशनशिप्स निभाने, जैसा मेरे पापा बड़े सोशल बंदे हैं, वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने दोस्तों के साथ बड़ा टाइम स्पेंड किया, तो उनकी ज़िंदगी में मकसद ही है। मैंने डिफाइन किया कि नहीं यार मैं ये XYZ बनाना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। और मुझे दोस्तों के साथ फ्लाई करके जो सारे प्रोग्राम्स हैं इनमें मजा आता है, तो मजे की बात है ना। और
अगर काम में मजा आए तो मुझे लगता है शायद वो भी सारे मुझे सेक्रीफाइसेस एज सच नहीं लगते। कि मुझे लगता है कि जो भी स्ट्रगल थी, मैंने बड़ी एक प्रिविलेज वाली जिंदगी गुजारी है, आज भी गुजारा हूँ, बड़ा ब्लेस्ड रहा हूँ। शायद जो लोग जीरो से शुरू करते हैं उनके सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा है। हमारे सेक्रीफाइसेस भी हमारे ब्रेन में बड़े होंगे कि यार इस महीने पैसे नहीं थे, लेकिन हमेशा माँ बाप के दिए हुए घर में तो हम रह ही रहे होते हैं, तो हमें वो देखना चाहिए कि हमें कितना कुछ बाय डिफॉल्ट मिला हो, राइट। तो उसमें मुझे लगता है सेक्रीफाइसेस जो मैंने किए हैं वो शायद इतने बड़े नहीं हैं। लेकिन ये कि बिजनेस की डिमांड तो यही होती है कि आपको बड़ा कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। टाइम पे शायद मैंने एक रिस्क लिया है कि यार यूनिवर्सिटी छोड़ दी एक ऐसी प्राइम एज में, जब लोग कहते हैं मैं नर्स इंजीनियर बन जाऊं, और वो 1 साल 2 साल को 2.5 साल बाद जाके सही हमें अच्छे रिटर्न नजर आए, और फाइनेंशियली भी ग्रोथ वाइज भी। तो वो एक रिस्क था कि यार लोग कहते हैं देखें जाया कर रहा है टाइम में, इस तरह की कोई बात। और लेकिन डेफिनेटली आई थिंक रिस्क और सेक्रीफाइसेस बड़े ज़्यादा हैं जो आपको लेने पड़ते हैं, हर एक के लिए शायद उनका नेचर, उनकी जो है स्ट्रेंथ डिफर करती है कितना बड़ा रिस्क है। This episode of Mentors Mantra is sponsored by Channel 7. Channel 7 is a full service agency that offers in house services from conception to execution. They have over 30 years of experience working with over 150 of the best, biggest commercial and governmental clients. Their team consists of over 100 highly skilled professionals across Pakistan and UAE who will always be there to get your desired message across through their specialized PR, digital, and event management services. Once you are with Channel 7 Communications Private Limited, you can put your mind at ease. Get in touch today. Log into their website to see what you like on www.thechannel7.com. Email them at info@channel7.com.pk or call them to book a consultation on 051 111 171 777. अच्छा, इसमें ये जो है एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि वैसे तो ख़ैर मेरा ख़्याल है ये जो आपने बात की इसको मैं ज़्यादा अगर अच्छे तरीके से कहूँ तो मैं एक फ़िल्म रिकमेंड किया करता हूँ लोगों को, विल स्मिथ की इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। कि ये जो बिल्कुल। हम अक्सर लोग स्ट्रगल करने से घबराते हैं और ये बड़ी बात है। अर्ज़िश कहते हैं कि मेरा एक कंफर्टेबल लाइफ़स्टाइल है और इसके बावजूद मतलब मैंने थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर ली, लेकिन मतलब अल्हम्दुलिल्लाह के पीछे बहुत कुछ था भी सही। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जिसके पास कुछ नहीं होता शायद वो ज़्यादा हंग्री होता है, वो ज़्यादा भूखा होता है, वो ज़्यादा स्ट्रगल करता है। तो ये विल स्मिथ की जो फ़िल्म है ये मैं जब भी देखता हूँ और कई दफ़ा देख चुका हूँ, तो ये दोबारा से मुझे एक किस्म का ग्रेटफुलनेस का दर्स देती है कि आदमी को हमेशा शुक्रगुज़ार होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज़ दैट्स व्हाट द पर्पज़ ऑफ लाइफ़ इज़। एंड आई थिंक इट्स अ इवन ग्रेटर पर्पज़ जो अर्ज़िश कर रहे हैं कि मतलब लोगों को इनकी वजह से रोज़गार के मौके मिल रहे हैं, लोगों को इनकी वजह से बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं। और मेरा तो ये ख़्याल है कि लोगों को इनकी वजह से हौसला भी मिल रहा है, क्योंकि हौसला सबसे अहम चीज़ है कि लोगों को ये यकीन हो जाए कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, ये अली अब्दुल्ला का सवाल है, आई थिंक टू सेट मीनिंगफुल गोल्स एंटरप्रेन्योर्स मस्ट रिकंसाइल व्हाट दे वांट विद व्हाट दे आर विलिंग टू रिस्क। तो ये स्टेटमेंट है वैसे, लेकिन इस स्टेटमेंट के क्योंकि सवाल नहीं है ये। तो इसके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहो अर्ज़िश? जी जी, तो आई थिंक टू सेट मीनिंगफुल यू कैन सेट एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आई थिंक स्टेटमेंट में एग्री करूंगा। तो आपने डिफाइन करना है कि यार आपको चाहिए कि अगर आपने को $1 बिलियन कंपनी बनानी है तो उसके लिए बड़े डिफरेंट सेक्रीफाइस। मैंने नहीं बनानी, मैंने वो बड़ी जल्दी मुझे क्लियर हो गया था कि इतने ज्यादा पैसे जो है ना, कोई इतने काम के नहीं होते। एक लिमिट के बाद आके वो नंबर ही बन जाता है आपके बैंक अकाउंट में, तो उसके बाद वो ज्यादा हो कम हो को खास फर्क नहीं पड़ता। तो जिंदगी में उतना काम करना चाहिए कि जरूरियात जितनी आपकी हैं, चाहे वो लैंड क्रूजर लेना हो, वो पूरी हो जाए। और उसके बाद मुझे लगा कि यार ठीक है, बस इतना मैं काम करना चाहता हूँ। और दूसरा जो शायद रीज़न है कि मैं जो भी अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं सच उसे काम समझता नहीं। जो भी काम है कभी फाइनेंशियल मोटिव के लिए किया नहीं। अच्छा लगता है, मज़ा आता है, लोगों से मिलने में मज़ा आता है, ये सारा कुछ करने में। तो मुझे तो जितने भी फाइनेंशियल गेन्स आए हैं मेरे लिए एडिशनली थे, क्योंकि कभी टारगेट ही नहीं किया कि यार इससे भी आरओआई आ सकती है। अभी जब आती है हम तो खुश होते हैं कि ठीक है, ये काम तो शायद हम वैसे ही कर देते शौक। तो अच्छी बात है कि इधर से सस्टेनेबिलिटी भी आ गई।
जी, हेलो। जी, जी। हाँ जी, बीच में मेरा ख़्याल है वो नेट कुछ रुक गया था। अच्छा, अच्छा। अच्छा सही। तो आपने कहा ना आपने तो इसको मिशन समझ के समझा और प्रॉफ़िट को सामने ना रख के किया। ये बड़ी अच्छी बात की आपने। जैसे कुछ लोग जो हैं वो बेसिकली वो कहते हैं कि वो बिज़नेस इसलिए लॉन्च करते हैं कि पैसे कमाने हैं। और स्टार्टअप्स में हम समझते हैं कि स्टार्टअप आई आप थिंक इसलिए शुरू करते हैं कि सो ये इससे इसमें ऊपर की चीज़ होती है। जी, अर्ज़िश। जी, जी। इसमें सर मेरा मेरा ये कमेंट होगा कि वो भी शायद अपनी जगह सही है। मुझे लगता है सारे ही सही हैं, डिफरेंट पाथ्स हैं। और आई एम श्योर आप भी ये बिलीव करते हैं। देखिए जिसके पास एक पॉइंट में मैं भी पैसे कमाना चाहता था। मुझे लगता था यार वो एक दोस्त को कहा कि वो महीने के 5 गुना खाते हो ना, बड़ी अमाउंट होती है, कभी ख़त्म ही नहीं होते। अब मैं मज़ाक करता हूँ कि यार वो जाते किधर हैं ये भी नहीं पता लगता। तो अगर आपका गोल पैसे कमाना है दैट इज़ ऑल्सो ऑलराइट। बस ये कि आपको क्लियर होना चाहिए कि गोल क्या है। क्योंकि जब क्लियर होगा तभी पाथ उस गोल की तरफ होगा ना। अगर तो गोल है कि यार ठीक है मैंने $1 मिलियन ईयर बिजनेस खड़ा करना है तो आप कर लेंगे एज लॉन्ग एज आपको क्लियरली पता है। इन मेरे केस गोल कभी ये नहीं था कि यार ज्यादा सारे पैसे कमाने हैं, मतलब आते हुए बुरे नहीं लगते। और गोल ये था कि यार टू सम एक्सटेंट कि यार पाकिस्तान का नाम बनाना है, कूल सी कॉन्फ्रेंस करानी है, हमेशा से मुझे शौक था कि एक बड़ी नेक्स्ट लेवल में कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। और अब मेरे कुछ गोल इस तरह के यार अच्छा अगर हम 40 लोग हैं कि अमेरिका, हम 100 कैसे लेके जा सकते हैं, 200 कैसे जा सकते हैं, एक पूरा बोइंग जो है वो भर के कैसे जा सकता है, इस तरह के थोड़े वियर्ड से गोल्स हैं। तो आई थिंक वो भी अचीव हो ही जाएंगे। लेकिन ज्यादातर मेरी पर्सनल गोल सेटिंग जो है बड़ी नॉन फाइनेंशियल ही रही है। लेकिन जिसकी है आई थिंक उसमें भी कोई बुराई नहीं है। हाँ, नहीं कॉन्फ्रेंस तो एक आपने और बड़ी आई थिंक शानदार सवाल की। आ गया। नहीं, सवाल बहुत आ गए, मेरे पास 5 सवाल आ गए, वो नहीं, अलग से आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले अच्छा। 1-2 सवाल जो मैं और बहुत अहम पूछना चाह रहा हूँ बिफोर वी अच्छा, आपने जब शुरू किया तो यू डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम अ पोज़ीशन ऑफ मतलब बहुत पैसे नहीं थे और सारा। अच्छा, जब जी। स्पेशली आपने स्टार्टअप ग्राइंड शुरू किया और स्टार्टअप ग्राइंड मुझे याद है, इससे पहले पिछले 10 साल में 2 दफ़ा लॉन्च होके पिट चुका था पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने इसकी कुछ मीटिंग्स वगैरह अटेंड की थी, लेकिन हर दफ़ा इट यूज्ड टू फिज़ल आउट। आपके इर्द-गिर्द जो टीम आई और जिससे आपने काम लिया, वो टीम मैं तो क्रेडिट आपको दूँगा कि वो टीम आपने इकट्ठी की। उसके अंदर सीक्रेट सॉस क्या थी? कैसे डिसाइड किया कौन लोग हैं? मोटिवेट कैसे किया? पैसों से किया, वॉलंटरी स्पिरिट से किया और उनको साथ कैसे रखा? मतलब टीम में बहुत जल्द झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बड़े झगड़े कर लिए मैं तो। आई थिंक एक तो ये कि स्टार्टअप ग्राइंड पाकिस्तान में कराची में पहला चैप्टर आया था, फवाद सलीम को मैं क्रेडिट देता हूँ। बड़ा एक्टिव भी चैप्टर था। जब मैंने शुरू किया कराची भी इतना एक्टिव नहीं रहा, वो और बिज़ी हो गया था कामों में। शायद ओवर टाइम ये कि मुझे पता लगा मुझे शौक है। कुछ चीज़ें मुझे लगता है मेरे वालिदैन ने सिखाई थी जो मैंने कम्युनिटी बिल्डिंग में भी अप्लाई की। जिस तरह लोग शायद समझते हैं कि अच्छा यार इस काम से कुछ पैसे नहीं आ रहे, तो बस ठीक है ये ओके सी क्वालिटी का भी इवेंट होना तो चलेगा। हमें होता है कि यार आ रहे हैं, नहीं आ रहे, बात है कि जो काम करना है वो कंप्लीट करना चाहिए, वो क्वालिटी पे करना चाहिए। तो शायद उस वजह से ओवर टाइम आके एक रेपुटेशन, एक नाम बन गया स्टार्टअप ग्राइंड का भी, मेरा भी, और बड़ा स्टार्टअप ग्राइंड से मैंने बेनिफिट किया है। जहाँ तक टीम का सवाल है, आई थिंक एक तो मेरा भाई काम करता है मेरे साथ, वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है मेरी कंपनी का। उसके अलावा अब शायद हमको 20 लोगों की टीम है हमारी। और ओवर टाइम हमें जो बेस्ट तरीका मिला है टीम बिल्डिंग का वो ये है कि आप काम करके देख लें लोगों के साथ। उसमें पता लगता है कि उनका और आपका फिट है कि नहीं। क्योंकि आप जितने मर्जी जॉब इंटरव्यूज कर लें और जितना मर्जी कर लें, एट द एंड ये कि लोग वो सब कुछ फेक कर सकते हैं। आप किसी के साथ हफ्ता स्पेंड करें, काम करें, तो वो पता लग जाता है। कम्युनिटी बिल्डिंग का हमें फायदा क्या है कि बहुत से लोग वॉलंटियर करते हैं आपके साथ चीज़ों में, और हमें पता लगता है अच्छा यार ये लड़के में स्पार्क है, इस लड़की में स्पार्क है, तो इन्हें कहीं हम एंगेज कर लेते हैं परमानेंटली, पार्ट टाइम, फुल टाइम, इस तरह की चीज़ों में। फिर ओवर टाइम मुझे लगता है कि एक तो टीम है जो भी पेड है, एंगेज्ड है कंपनी के साथ। उसके अलावा शायद दोस्तों का और मेंटोर्स का बहुत एक क्रूशियल रोल रहा है इस सारे को बिल्ड कर, कि वो लोग मिल गए ओवर टाइम जो जो बिलीव करते हैं गिविंग फर्स्ट में और लोगों की मदद करने में, और इस विजन में जिसके लिए हम एफर्ट करते हैं। तो उसमें स्पॉन्सर्स भी हैं, उसमें आप जैसे मेंटोर्स भी हैं, और वो भी ओवर टाइम आई थिंक उनका भी बड़ा एक बड़ा रोल रहा है। यू नो, लाइक फ्रॉम लाइक यूएस एम्बेसी टू जेएस बैंक टू नेटसोल टू ऑल दीज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने ऑन एंड ऑफ और अभी भी बहुत सी चीज़ों में वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो अर्ज़िश एक डिफरेंट सा सवाल। मैंने जब बिज़नेस शुरू की तो मेरी उम्र थी आई थिंक साढ़े 21 साल।
सो 21 एंड हाफ में शुरू की। मुझे याद है एक दफ़ा हम एक वाओ। प्रेजेंटेशन दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से हम पहुँचे उस जगह पे और प्रेजेंटेशन दे रहे थे हम। मिनिस्टर था वो, बड़ा मशहूर मिनिस्टर, आजकल भी मिनिस्टर हैं। तो हम दोनों पार्टनर एक ही एज के, तो वो कहता है यार ये तो चाइल्ड लेबर आ गया। तो ये जो शुरू में जब आपका नाम भी अच्छा। नहीं है, रेपुटेशन भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, आपने बिज़नेस लॉन्च की, तो आपको लोगों ने सीरियस कैसे लिया? आई थिंक एक तो अगेन आप जैसे मेंटर्स की वजह से तो मुझे लगता है एफआई ने एक बड़ा रोल प्ले किया था कि इवन बिफोर दिस लाइक मेरी फैमिली का आईटी इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, शायद अभी भी बहुत कम लोग हैं जो मेरी फैमिली को जानते हैं, मिले हैं। इवन यूसुफ और आपको भी शायद कुछ 3-4 महीने बाद इंटरव्यू हुआ होगा कि अच्छा यार फैमिली क्या करती है? और तो मैं उधर आया, एक बड़ा एक्सपीरियंस था, सारे लोगों से इंट्रोडक्शन हो गए एफआई की वजह से, मेंटोर्स से। फिर जिस तरह आप और यूसुफ ने पर्सनलाइज्ड जाके लोगों को रीच आउट करना, उनसे इंट्रोड्यूस कराना, आई थिंक उसने बड़ा एक मदद की क्रेडिबिलिटी स्टेब्लिश करने में जिस तरह आप लोगों ने बेट ली हम पे या मुझ पे स्पेशली। एक वो चीज़ थी, दूसरी आई थी कि हमेशा जो कम्युनिटी बिल्डिंग से मैंने सीखा शुरू में ही, कि आप जितने मर्जी छोटे हों, आप कोई ना कोई तरीका फिगर आउट कर सकते हैं दूसरे बंदे को वैल्यू देने का। तो चाहे वो बिलियनर ही है, आप यू कैन फिगर आउट सम वे टू ऐड वैल्यू टू देयर जर्नी, टू देयर लाइफ, एंड दैट इज हाउ यू डेवलप अ रिलेशनशिप, राइट? आपने पहले कुछ करना है उनके लिए, बे लॉस करना है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी वो एक कसर यूनस एक बंदा है, वो वाई कॉम्बिनेटर का सीईओ था, अब उसकी जो स्टार्टअप है वो यूनिकॉर्न हो गया। तो मैं 2018 में गया, 2016 में कसर से पहली दफा मिला, 2018 में मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि यार आप आए हमारे ग्रुप के साथ कोई घंटा स्पेंड करें, कि आपके इतने डाइवर्स एक्सपीरियंसेस हैं। एक पाकिस्तानी लाला मूसा से उठ के गया, वाई कॉम्बिनेटर का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, तो हम सीखना चाहते हैं। अब उसका वो $1 बिलियन स्टार्टअप है, तो अब बड़ा आसान है कहना कि अच्छा यार हम ये सारे एक्स वाई लोगों को जानते हैं जिन्होंने बिलियंस की कंपनीज बनाए हैं, जो इन पोजीशंस पे हैं। लेकिन हर लेवल पे कोशिश की है कि यार कोई वैल्यू दे सके। इंस्टा में बड़ा लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि एक जो शायद मेरे लिए चीज़ वर्क की वो थी इंट्रोडक्शन, राइट? तो क्योंकि मैं घूमता फिरता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ डिफरेंट लोगों को, तो मेरे लिए बड़ा आसान है कहना कि मसूद साहब आप फलानी चीज़ का जिक्र कर रहे थे, तो मेरे वो दोस्त हैं, मुझे मिले हैं, मैं आपसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो इस तरह आप इंट्रोड्यूस कराते रहें, एक तो वैसे ही ज़रा सदका ही जारी है, और दूसरा कि आपका इससे इम्पैक्ट बड़ा बड़ा हो जाता है। वो दोनों लोग कहीं ना कहीं उनके ब्रेन में रहता है कि यार अच्छा हम किसके वसीले से कनेक्ट हुए थे, जो वसीला वाला सारा कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक उसने बड़ा रोल प्ले किया, और इस मेंटेलिटी ने कि यार जो जिस मर्जी पोजीशन में, I can figure out some way to give value to them, whether that is inviting them as a speaker to one of our events, right? That is value to a lot of people as well, whether that is to listening to someone for like an hour, right? तो बहुत से लोग चाहते हैं कि आप जाएं, उन्हें टेंशन दें, आप टाइम दें, सुने उनकी बात। तो डिफरेंट तरीके होते हैं, जरूरी नहीं वैल्यू बंदा कैश में ही दे सारों को। हुँ। तो बहुत सी तरीके हैं जिससे आप लोगों की इज्जत कर सकते हैं, उनको उनको मतलब कुछ कर सकते हैं उनके लिए, कि बाद में कभी जब भी आपका रिलेशनशिप हो वो अच्छे लफ्जों में याद रखें, और फिर ये नेटवर्क बिल्ड हो जाए। जिस तरह अब हम शायद इतने लोगों से अपने लिए फेवर नहीं मांगते जितने हम स्टार्टअप्स के लिए मांगते हैं, कि आज ये बंदा आ रहा है नॉर्वे, आप मिल लें, इसे देख लें, कनेक्ट करा दें, ये कुछ सिएटल आ रही है फाउंडर, इसके लिए कुछ कर दें। तो वो बड़े यूजफुल रिलेशनशिप ओवर द इयर्स बिल्ड हो जाते एमी विल्किंसन ने किताब लिखी है क्रिएटर्स कोड, और उसमें हैं। 6 प्रिंसिपल्स हैं जो क्या कहती है, 6 एसेंशियल ट्रेट्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर्स। उसमें जो छठी छठी स्किल है ना, वो है सेल्फलेस गिविंग, जो कि अभी अच्छा। आप बयान कर रहे हो। इट्स बेसिकली गिविंग सो दैट यू कैन हेल्प अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न फॉर योरसेल्फ। और वो कहती है कि इट गिव्स यू बैक मल्टीफोल्ड, मतलब आप जब देते हो इस सेंस से, तो आपको इसका बदला यूनिवर्स जो है खुद देती है। सो आई थिंक यू आर अ लिविंग टेस्टामेंट टू दैट। अब हम सवाल लेते हैं, हमारे पास अब कोई 8-9 सवाल आ गए हैं, तो लेट्स गो क्विकली ओवर द क्वेश्चंस। फैजान चंगेजी पूछ रहे हैं, व्हाट आर द बेस्ट मेथड्स टू बिल्ड कस्टमर कम्युनिटीज? ठीक है। एक एक हम्म। करके पूछते रहते हैं ना, या इकट्ठे पूछ लो, फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। एक एक करके चलते हैं इतने, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी कस, कोशिश करूंगा जो ज्यादा लंबी ना बातें करूं। और अच्छा, व्हाट आर द बेस्ट मेथड्स टू बिल्ड कस्टमर कम्युनिटीज? तो आई थिंक फेसबुक हैज बीन वेरी इफेक्टिव इन आवर केस। आई कैन ओनली शेयर माय, मतलब मेरे एक्सपीरियंसेस, शायद मैं उन पर ज्यादा बात कर सकता हूँ। तो हमने ये जात प्लस की बनाई है, ओवरऑल हमने आईटी इंडस्ट्री के लोगों की व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो एक वो कम्युनिटी बिल्डर्स का ग्रुप मैंने बनाया था, कुछ 1.5 एक साल हो गया उसको बने हुए, और अब वो बड़ा एक एक्टिव ग्रुप है। मतलब अगर आप आज
स्टार्टअप इनोवेशन टेक स्टार्टअप एनीथिंग, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो शायद व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे पाकिस्तान में बहुत इफेक्टिव हैं। स्लैक चलता है जब ग्लोबल आप बात करते हैं, अमेरिका की बात कर लें, बाकी इकोनॉमीज की, तो एक स्लैक ग्रुप है पाक कनेक्ट के नाम से, जिसमें पाकिस्तानी डायस्पोरा के बहुत ज़्यादा लोग हैं, कुछ 70%, 30% पाकिस्तानी फाउंडर्स हैं। और उसका पर्पज़ ये है कि कनेक्ट करें आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो सारे लोग हैं जो कि बैक करना चाहते हैं, प्लस जो पाकिस्तान के लोग हैं। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ दी प्लेटफॉर्म्स, एंड देन यू कैन यू कीप एंगेजिंग देम समहाउ, जिस तरह हम हमें लगता है करते हैं इन सारे रेगुलर समिट से या कॉन्फ्रेंसेस से या मंथली सेशन से, जो हम स्टार्टअप लाइन में फिजिकली करते थे, अब हम वर्चुअली भी करते हैं। तो ये सारी चीज़। अच्छा, इसमें ये कि फैज़ान का चूँकि सवाल कस्टमर कम्युनिटी का है ना, तो मेरा ख़्याल थोड़ा-सा स्पेसिफ़िक हमें लेना पड़ेगा। अब फैज़ान, चूँकि आपने अपनी प्रोडक्ट नहीं मेंशन की कि क्या है, आपको अपनी प्रोडक्ट के हवाले से कस्टमर पर्सोना बनाना पड़ेगा, आपको अंदाज़ा होना चाहिए आपका कस्टमर है कौन, और फिर उस कम्युनिटी बिल्डिंग के भी रूल्स वही रहते हैं, क्रिएट वैल्यू फॉर योर कस्टमर्स ताकि वो एंगेज हों। तो जो अर्ज़िश भी बात कर रहे हैं, ये सब वैल्यूएबल ग्रुप्स हैं, ये इकोसिस्टम के बिल्डर्स हैं, यानी कि अर्ज़िश का जो कस्टमर है वो ये ग्रुप्स हैं, राइट? मेरे और कस्टमर। अर्ज़िश जो हेल्प करते हैं लोगों को, वो इन ग्रुप्स को आपस में कनेक्ट करके करते हैं। अ, अच्छा, हम अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल मैं लेता हूँ इधर से, और ये सवाल है मोहम्मद आलम ज़ेब का। ये कहते हैं आईटी फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट है, रैपिडली चेंजिंग डायनामिक्स जो हैं, उनसे कैसे कोप किया जाए? क्योंकि जो वैल्यू प्रोपोज़िशन है इन सर्विसेज़ इंडस्ट्री जनरली एंड प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली, वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो इसके लिए जो रैपिड एक्टिव लर्निंग है, उसको हम कैसे मैच करें? यानी कि जितना हमें तेज़ी से सीखने की ज़रूरत है, चाहे प्रोडक्ट है, चाहे सर्विस है, बल्कि ये बात सच है कि प्रोडक्ट में ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से सवाल लगे, इतना मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, लोगों को लग रहा है शायद। तो मुझे बड़ी बड़ी जगह पे जो है ना, हमारे तुक्के भी आप लग जाते आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो पढ़े-लिखों से ज़्यादा हो गया है। सो सवाल जो है उनका बहुत सादा-सा है। सवाल उनका ये है कि रैपिडली चेंजिंग डायनामिक्स जो है गवर्नमेंट मार्केट के, और उसकी वजह से जो वैल्यू प्रोपोज़िशन की जो क्रिएशन है, वैल्यू प्रोपोज़िशन जो चेंज हो रहा है। क्योंकि मेथोडोलॉजी बदली, जैसे कोरोना आया, हम सब जो है वर्क फ्रॉम होम में चले गए, साथ ही हम सब ज़ूम पे चले गए, तो जो वैल्यू प्रोपोज़िशन तो चेंज हो गया। तो अगर किसी का एडटेक था, फ़र्ज़ करें प्रोडक्ट था, एडटेक था, तो एडटेक के लिए, कुछ के लिए ये बहुत बड़ा बूस्ट था, और जो एक्चुअल स्कूल एनवायरनमेंट में थे उनके लिए ये बहुत। तो सवाल ये कि ये जो चेंजेस हैं, इनके लिए लर्निंग किस किस्म की होनी चाहिए? एक्टिव लर्निंग, कैसे बंदा चेंज में सीखे? आप कैसे सीखते हो? आपने भी तो बहुत चेंज किया ना? कोविड की वजह से आपने अपनी फिजिकल कॉन्फ्रेंसेस का मॉडल बड़ी तेज़ी से चेंज किया। ऐसे ही। तो आई थिंक अगेन बड़ा अच्छा सवाल है। तो मुझे एक तो लगता है कि ऑलवेज जो है ना, मतलब शायद कोई 20 साल पहले होता होगा कि लोग मास्टर्स करते हैं, उसके बाद पढ़ना ही छोड़ देते हैं, जॉब कर लेते हैं। अब तो एक लर्निंग हर इंडस्ट्री में, इवन अदर देन आईटी, बड़ी रेगुलर आपको सेल्फ लर्निंग करते रहना चाहिए, ऑनलाइन भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो मेरा मुझे वैसे ही बड़ा शौक होता है डेटा ट्रेंड स्टडी करने का, वो सारे अप टू डेट रहने का, स्पेशली जो मेरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, हुँ, कॉन्फ्रेंसेस, हुँ। कम्युनिटी इवेंट्स, आईटी इंडस्ट्री स्टफ ऑल। तो वहां से फिर कुछ आइडियाज भी आ जाते हैं। आप कहते हैं यार अच्छा, ये देखिए अमेरिका में लोग कंपनी ओपन कराते हैं, ये XYZ सर्विसेज हैं, तो हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलता है। हमने देखा कि अच्छा यार, लोग वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस करा रहे हैं, हम भी स्टडी करते हैं प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, वो अप्लाई कर दिए। तो आई थिंक अगर आपका एक प्रोडक्ट चल जाए, तो फिर उसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि यार अच्छा, अब आप लेटेस्ट कैसे रह सकते हैं, आप नई चीजें कैसे ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी एक चीज ग्रो नहीं कर रही, तो मुझे लगता है कि वो पीछे जा रही है। राइट, अगर अगर आप कहें कि ठीक है यार, हम ये एक सर्विस देते हैं, PHP में हम डेवलपमेंट करते हैं वेबसाइट्स की, हम यही पूरी जिंदगी करते रहेंगे, तो वो कभी ना कभी आउटडेट होगी, और उसमें ग्रोथ भी उतनी नहीं है। आपको देखना पड़ेगा यार, इंडस्ट्री में लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, टॉप इन्फ्लुएंसर्स क्या बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री का फ्लो कहाँ मूव हो रहा है। जिस तरह हमें क्लियरली नजर आ गया था, सारी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस वर्चुअल चले गई हैं, और हमने कहा अच्छा है, ठीक है, एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हमें भी करनी चाहिए। हमने शायद बाकी लोगों से जल्दी अडॉप्ट कर लिया, जून में ही वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर दी। बाकी लोगों को थोड़ा सा टाइम लग गया करने में। अच्छा, जब अब शायद ट्रेंड थोड़ा सा वापस आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में स्पेशली कोविड का उतना इफेक्ट नहीं है, तो फिजिकल इवेंट्स भी टू सम एक्सटेंट होना शुरू हो गए। तो काइंड ऑफ कीपिंग अप विद थिंग्स इन लाइफ, कीपिंग अप विद all that's happening around you, especially with technology, all that's happening outside Pakistan, all that's happening
इन सिलिकॉन वैली इंटरनेशनली, क्योंकि एक तो वैली का बड़ा सीन है कि वहाँ जो चीज़ हिट होती है वो कुछ 6 महीने, साल, 2 साल बाद पूरी दुनिया में ही हिट हो जाती एक्सीलेंट आंसर। तो इसको मैं भी ज़रा सा अपना ऐड कर दूं। एक तो ये कि अपने कंपटीशन को बेंचमार्क करें और उनको रेगुलरली विजिट करें, मतलब यू शुड डू दैट। दूसरी बात ये कि जैसे कि अपना ट्विटर है, तो ट्विटर के ऊपर जो आपके इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको फॉलो करें। तीसरा, ये बहुत सारे ऐसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको रेगुलरली रिपोर्ट कर रही होती हैं फ्री में आपको, मतलब बेसिकली यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब एंड यू विल गेट टू लर्न फ्रॉम देम। मैकिन्जी हो गया, और लोग हैं, बॉस्टन कंसल्टिंग हो गया, उनको फॉलो करें तो आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स वगैरह मिलते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको मैं फॉलो करता हूँ वो ट्रेंड हंटर है, जो कि अभी उसने लास्ट वीक रिपोर्ट निकाली है जो 100 बड़े ट्रेंड्स उसको नज़र आ रहे हैं। तो इस किस्म की चीज़ों पे जब आप नज़र रखते हैं और इस बात को आप जो कहते हैं ओपन माइंडेडली एक्सेप्ट करने को तैयार होते हैं कि शायद आपकी इंडस्ट्री वायबल ना रहे, दैट्स द क्विकेस्ट वे टू लर्न। और अगेन आई वुड से कि startup.pk जो हमारा इसमें वेबसाइट है, उसमें भी हम मुसलसल इस किस्म की चीज़ों के ऊपर अपडेट करते रहते हैं और इस किस्म की डिस्कशंस वगैरह करते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट नोशन के जो है ना, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। तो अगर आप है। चेंज के लिए तैयार नहीं है ना, तो यू आर अ फॉसिलाइज्ड डायनासोर। अच्छा जी, तो अच्छा, ये औरंगज़ेब का सवाल तो मैंने अभी-अभी पूछ लिया। अब शहरयार का सवाल है, डू यू फील द नीड ऑफ एन ऑर्गनाइजेशन एट इनिशियल स्टेजेस that could have provided you a complete go-to-market design and marketing services? अच्छा, ये लग रहा है सेल्स पिच आ रही है मुझे, बाद में कोई ये ईमेल आती बिल्कुल है। सेल्स पिच आ रही है। तो इवन इवन टुडे तो हम क्या है कि बड़े डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं। आजकल हम प्रोडक्ट्स में भी चले गए हैं, हमारी एक दो चीजें चल गई हैं तो हम उसमें बड़ा जा रहे हैं कि यार प्रोडक्ट्स वाली गेम बड़ी अच्छी लगती है। और उसमें ये जो सारी चीजें ना ये बड़ी वैल्यूएबल हैं कि यार अच्छा ठीक है, डिजाइन एंड मार्केटिंग, गो टू मार्केट। पाकिस्तान में जो वाहिद इशू है कि एक तो क्वालिटी के लोग ढूंढना और फिर वेरीफाई करना कि अच्छा यार जो कमिट करें बाद में वही काम करेंगे, वो ऑनेस्ट इशू है, हमारी इकॉनमी का ट्रस्ट डेफिसिट है। तो हमें बड़े साल लगा के कुछ लोग मिले हैं जो हमारा डिज़ाइन देखते हैं, जो हमारा मार्केटिंग देखते हैं। ज़्यादातर चीज़ें आउटसोर्स्ड हैं डिफरेंट बिजनेसेस को, और गो टू मार्केट हम काफ़ी खुद करते हैं। लेकिन अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जो इस स्टैंडर्ड की सर्विसेज दे सके, तो ना सिर्फ हमें बल्कि बड़े लोगों को हम जानते हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत होगी। ज़बरदस्त। तो इसमें मैं वैसे ऐड कर दूं कि चूंकि मैं एनआईसीज वगैरह में कोच भी करता हूं, सो टेक स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा मुझे मुझे मसला जो है हमेशा यही लगता है कि वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं, लेकिन कस्टमर डेवलपमेंट एक उनका वीक होता है, और दूसरा गो टू मार्केट में देयर इज ऑलवेज अ लॉट लैकिंग। सो इसी वजह से जो startup.pk है, इसके ऊपर भी हम अब इंशाल्लाह जनवरी के एंड में गो टू मार्केट के मुख्तलिफ पैकेजेस लॉन्च करने जा रहे हैं, ताकि जो इस किस्म के मसले हैं उसमें एक रिलायबल, रिप्यूटेबल और अफोर्डेबल, ये 3 लफ्ज़ हैं जिनके साथ हम कोई पैकेजिंग दे सकें। अच्छा, सो औरंगज़ेब का सवाल हमने पूछ लिया, अब हम आगे चलते हैं। तो अच्छा, सवाल मेरा ये था आपसे कि जो पहला 1.5 साल था, उसके बाद जब आपने कम्युनिटी बिल्डिंग में पिवट किया, सबसे बड़े 3 चैलेंजेस क्या थे आपके? 3 चैलेंजेस। अच्छा, हुँ, आई थिंक पहला तो बड़ा ऑब्वियस है कि पाकिस्तान में लोग साइलोज में काम करते हैं, स्पेशली लाइक हमारी वाली इंडस्ट्री में, पता नहीं शायद बाकियों में भी होगा, मेरा इसका एक्सपीरियंस है। तो इवन मैं भी एफआई से निकला, प्लानिंग में चला गया, शौक शौक में, वहां से शौक नहीं है इसी में चला गया। तो ऑब्जर्व ये किया कि पता नहीं सारों ने आपस में मुकाबला लगाया हुआ है, सवाए एफआई वालों के। हम जरा हमारे फाउंडर्स तो हर जगह ही चले गए। तो मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल दीज डिफरेंट पीपल, समटाइम्स हम कहते हैं अच्छा यार प्रॉब्लम मेरा कंपटीशन ना कराची वालों से। अच्छा, हमारा कंपटीशन एक दूसरे तो है ही नहीं, ग्लोबल दुनिया है टेक की, हमारा कंपटीशन दुनिया से है। तो अगर होनी चाहिए कोई नेशनल बात होनी चाहिए, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान टेक समिट, पाकिस्तान इनोवेशन रोड शो, पाकिस्तान दिस, पाकिस्तान दैट, स्टार्टअप रेन पाकिस्तान। तो हमने बड़ा था कि यार अच्छा सारों को इकट्ठे करें, मुल्की लेवल पे हम चीजें करना चाहते हैं। और वो उस पे भी हमने वो कम्युनिटी बिल्डिंग स्ट्रेटजीज ही अप्लाई की। क्या ठीक है, लोगों को शेयर्ड ओनरशिप देनी चाहिए कि अगर आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एनआईसी पेशावर को बुलाएं जिन्होंने इस तरह हमारी सोशल मीडिया में मदद की स्टार्टअप लाइन पे। बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रीब्यूट किया। ग्लोबल पाकिस्तान टेक समिट में ऑलमोस्ट कुछ 40 ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने सेशन होस्ट किए। तो उसमें हमारा एक मकसद था कि यार लोग मिल के काम करें, क्योंकि मिल के ग्रोथ होती है, मिल के
जो है हम ज़्यादा आगे जा सकते हैं, और अब काफ़ी हद तक मुझे लगता है वो बेहतर हो गई हैं चीज़ें। तो एक एक आई थिंक कम्युनिटी बिल्डिंग में वो इशू था। दूसरा शायद जो इशू था वो ये कि ओवरऑल इकोसिस्टम उतना मैच्योर नहीं था। मुझे याद है जब एनआईसी नया ओपन हुआ तो शायद दूसरे महीने ही मैंने अपना पहला इवेंट कर लिया होगा। उस टाइम एनआईसी भी इतना हैपनिंग नहीं था। अभी कोविड के बाद प्रॉब्ली जब आप, या कोविड से पहले एनआईसी में डेली कोई इवेंट्स हो रहे थे इस्लामाबाद वाले। तो शायद इकोसिस्टम बड़ा नेसेंट स्टेज पे था। तो उस टाइम लोगों को इकट्ठा करना, बुलाना, एक हाइप बिल्ड करना, वो भी एक इन इटसेल्फ एक चैलेंज था। मोमेंटम बिल्ड करना स्पेशली स्टार्टिंग में। अब हमें लगता है कि ठीक है यार, इतनी फॉलोइंग, इतनी कम्युनिटी बन गई है कि हम हज़ारों लोगों वाली भी कॉन्फ्रेंस इजीली कर सकते हैं। तो शुरू में वो मोमेंटम बिल्ड करना मुश्किल था। कुछ जो अब अवेलेबल हैं उसमें सारा हमारा ही रोल नहीं है, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने कलेक्टिवली एक रोल प्ले किया है, जिससे ओवरऑल इकोसिस्टम, ओवरऑल अवेयरनेस इस चीज़ की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो वो दूसरा चैलेंज था। तीसरा मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सोच लूँ कोई अच्छा सा चैलेंज। चलें आप सोचें इतनी देर में। एक तो सुनने वालों को ये बताऊं कि पाकिस्तान के इकोसिस्टम में सबसे खूबसूरत बात यह है कि जैसे हम वैसे भी हॉस्पिटेबल लोग हैं ना, कि हॉस्पिटैलिटी मशहूर है पाकिस्तानियों की। इसी तरह मेरा भी तजर्बा ये है, और अर्जिश भी यही बात कर रहे हैं, कि जब आप किसी को भी रीच आउट करते हैं, सो जनरली पीपल वेलकम यू। ऐसा कम होता है कि वो कहें कि नहीं भाई ये हम क्यों आपको सपोर्ट करें या वगैरह वगैरह। सो ये नहीं मैं कह रहा कि स्पॉन्सर आपको करेंगे, लेकिन सपोर्ट जरूर करते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में। दूसरा एक वो कहावत ही है ना, इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। तो बहुत सारे फाउंडर शर्मा शर्मी पूछते ही नहीं है। अर्जिश ने पहले भी यही बात की कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट जब इनको कोई जानता नहीं था, जब नए नए शुरू हुए, वो था इंट्रोडक्शंस। बिल्कुल। पहले इनके जो इंट्रोडक्शंस लोगों ने करवाए, और फिर इन्होंने जो लोगों के इंट्रोडक्शंस आपस में करवाए। सो इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं ना कि किसी से आपने मिलना है या कोई आपकी मदद कर सकता है, लिंक्डइन पे रीच आउट टू पीपल एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कितने लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगे। अच्छा, मैं आखिरी सवाल अर्जिश पूछ रहा हूँ, ये बड़ा अहम सवाल है। सोशल मीडिया के आप मास्टर हैं, मतलब आप माने या ना माने, लेकिन सोशल मीडिया आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते हो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इसमें अगर हम एडवाइस दे रहे हों स्टार्टअप्स को, तो उन्हें सोशल मीडिया कैसे एंगेज करना चाहिए, और कौन सा सोशल मीडिया किस मकसद के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा? बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक एक तो सोशल मीडिया में मैं शाउट आउट दूंगा रेहान अल्लाह वाला को। उनसे मैंने भी बड़ा सीखा है सोशल मीडिया कैसे अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और इसी में ये कि लिंक्डइन बड़ा प्रोफेशनल है ग्लोबली। पाकिस्तान में भी आप देखेंगे बड़े सीनियर लोग हैं जो लिंक्डइन पे ज़्यादा इजीली रिप्लाई कर देते हैं। वेयर जो जनरल पब्लिक है, अगर आप रीच चाहते हैं, वो फेसबुक पे या यूट्यूब पे फॉलोइंग लेट बिल्ड होती है। मेरी आज तक नहीं। मेरा प्राइमरीली फेसबुक है, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स बने ही फेसबुक से हैं। तो आई थिंक अगर अगर आप अपने आप को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है एफआई में हमने एक चीज कवर की थी, कि वन ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इज कि यू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज एन इन्फ्लुएंसर इन द सेड इंडस्ट्री। तो मेरी इंडस्ट्री कम्युनिटी बिल्डिंग है, वहां पर मैं बड़ा पोजीशन करता हूँ कि यार मैं जरा बड़ा कूल वाला कम्युनिटी बिल्डर हूँ। उससे ऑब्वियसली हमारी जो इनिशिएटिव है उसको ही फायदा मिलता है। और उसमें फेसबुक इज द प्राइमरी मेथड, क्योंकि इवन दो अमेरिका में फेसबुक इज वेरी पर्सनल, बट पाकिस्तान में फेसबुक इज एवरीथिंग। फेसबुक इज लिंक्डइन, फेसबुक इज वेयर यू शॉप, फेसबुक इज वेयर यू नो शादी वाले ग्रुप्स भी वहां पर ही हैं। तो हर चीज फेसबुक के ऊपर है। तो वहां पर अपनी प्रेजेंस स्ट्रांग बनाएं, वहां पर लोगों से कनेक्ट करें, लोगों को रीच आउट करें। और उसमें आई थिंक अगेन रेहान अल्लाह वाला को भी फॉलो करें। उनकी जो सारी स्ट्रेटजीज हैं फेसबुक वाली, या फेसबुक से ग्रोथ लेने वाली, या जो उनकी 500 फ्रेंड्स वाली भी चीज़ है, जिसको पता नहीं बहुत लोग नहीं पसंद करते होंगे, लेकिन आई थिंक लर्निंग perspective से it is a very good method to add people, get in touch, get to know them. और initially I use LinkedIn a lot, especially FI के दिनों में बहुत से लोगों से LinkedIn पे reach out किया। अभी भी करते हैं, बट फेसबुक में रीच बहुत ज़्यादा मिलती है आपकी आवाज़ को, आप जो भी शेयर करना चाह रहे हैं मैसेजेस को। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूंगा कि ऑलरेडी टिकटॉक को इज़ बीइंग डिक्लेयर्ड एज द सोशल मीडिया ऑफ द ईयर 2021। तो पाकिस्तान में इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये हमें देखना पड़ेगा, लेकिन नाउ इट इज़ वेरी क्लियर कि एज अ मीडिया इट कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड। दिस ब्रिंग्स अस आई थिंक टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन, और आखिर में एक बड़ी अहम अनाउंसमेंट भी है। वो ये कि स्टार्टअप डॉट पी के की हमने एक मेंबरशिप लॉन्च की हुई है, जिसको हम स्टार्टअप डॉट पी के की ट्राइब कहते हैं। इस मेंबरशिप को स्टार्टिंग फ्रॉम फेब 1 st
हम कई सारी यूनिक ऑफ़र्स करेंगे और इस वक़्त ये मेंबरशिप फ्री है। अगर आप जॉइन करना चाहें तो startup.pk के पेज पे जाएँ और अपना हमारा फॉर्म भर दें रजिस्ट्रेशन का। लेकिन अब इसके लिए हमारे कुछ स्पेशल सेशंस, कुछ मेंटरिंग, अर्ज़िश जैसे मेंटर्स को भी हम ज़हमत देंगे कि आएँ। बिकॉज़ हम सबका मकसद जो है अल्टीमेटली एक ही है, वो ये है कि वी वांट टू सी कि पाकिस्तान का झंडा जो है ना, वो बुलंद से बुलंदतर हो जाए। और हमें इस बात पे बिल्कुल 100% यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नौजवान हैं वो मतलब उनमें ज़हानत कहते हैं ना कूट-कूट के भरी हुई है, उनमें हिम्मत भी है, हौसला भी है, ज़हानत भी है। हम सिर्फ़ ये सोचते रहते हैं कि उन्हें अपॉर्च्युनिटीज़ से कैसे मिलाएँ, कनेक्ट करें और दूसरी चीज़ ये कि उनको वो टेम्पलेट्स या प्रोसेसेस कैसे दें जिसके ज़रिए वो मेहनत करें तो किसी नतीजे तक पहुँच सकें। बहुत सारे लोग बहुत जल्द हौसला हार बैठते हैं। अर्ज़िश ने जो आज बातें की मेरा ख़्याल है इंतहाई अहम थी। आपने देखा कि एक नौजवान कैसे उसने एक इरादा किया, कैसे उसने स्ट्रगल की और कैसे इस इकोसिस्टम में अपना एक मुकाम बनाया। डेफ़िनिटली इसमें अल्लाह ताला की रहमत का बहुत दखल है, बिकॉज़ अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं होता। लेकिन एक बंदे में अगर हौसला हो ना और अपने ऊपर थोड़ा-सा यकीन हो, तो बाकी रास्ते अल्लाह ताला खोल देते हैं। तो इसके साथ ही आज का सेशन हमारा ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोग startup.pk को फ़ॉलो करेंगे। फ़ेसबुक के ऊपर भी हम मौजूद हैं और वेबसाइट भी है। और अर्ज़िश के साथ मेरा पुराना ताल्लुक है और मुझे बार-बार ये एहसास हुआ कि शायद आज का सेशन मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि इतना क्रेडिट नहीं बहरहाल मेरा ख़्याल अर्ज़िश आपकी अपनी अपनी योर जी, द कहते हैं वो यो मैं काफ़ी हैं? क्रेडिट देता हूँ, आप ये ना लिए मैं काफ़ी क्रेडिट देता हूँ आपको। आप देते रहें लेकिन मैं कहता हूँ कि यू आर द राइटर ऑफ योर ओन स्टोरी एंड माशाल्लाह यू आर राइटिंग अ ब्यूटीफुल बुक एंड इट्स इम्प्रेसिव एंड इट्स इंस्पायरिंग और हम सबको बड़ी खुशी होती है और नौजवानों को बड़ा हौसला मिलता है कि अगर अर्जिश जैसे लोग और दूसरे लोग जो हैं इतनी बड़ी बड़े इनिशिएटिव्स ले सकते हैं तो आप भी कोशिश कर सकते हैं और इंशाल्लाह अगर आप कोशिश करेंगे आप भी कामयाबी की तरफ गामज़न होंगे। तो इसके साथ ही बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम आज का हमारा रहा मेंटर्स मंत्रा का पहला प्रोग्राम था और पहले प्रोग्राम में ही अर्ज़िश आज़म जैसे हमने आपको एक यूनिक इंडिविजुअल से मिलाया जो कि मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अगले 5 साल में इंशाल्लाह अर्ज़िश का नाम आप सबसे बड़े कम्युनिटी बिल्डर्स में देखेंगे, अभी भी देख सकते हैं लेकिन आगे जो इनिशिएटिव्स आ रहे हैं और जितना इनकी जो विज़न है, जो फॉर रीचिंग फोरसाइट है, उसके तहत आपको और बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें होती नज़र आएँगी। तो अर्ज़िश बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने का। और इसके साथ ही हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।